سرکار اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا ہے؟ اور اسی خاندان میں کتنے مریدین یا تاج الشریعہ، کتنے مرید حضور تاج الشریعہ سے ہوں گے؟ سرکار اختر رضا خان پہلے، تاج الشریعہ بعد میں تھے۔ اگر اسی سلسلے کو پکڑا جائے تو آپ سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان پہلے، مفتی اعظم ہند بعد میں، سرکار امام اہل سنت امام احمد رضا خان پہلے، اعلیٰ حضرت بول کے بتائیے نا، اعلیٰ حضرت بعد میں۔ اور آگے اگر سلسلے کو لے کر چلا جائے تو چلیے کلیر شریف کی سرزمین پر، جہاں پر دور دراز سے لوگ وہاں سے فیضاب ہونے کے لیے آتے ہیں، سرکار علاء الدین پہلے، صابروں کے امام بعد میں۔ اجمیر معلیٰ کی سرزمین، جہاں پر دور دراز سے لوگ اپنی منتیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ پر جا کر رب کعبہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، مولا ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ وہ سرکار معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں، غریب نواز بعد میں۔ چلیے بغداد شریف کی سرزمین پر سرکار غوث اعظم کو پوری دنیا جانتی ہے، سرکار عبد القادر جیلانی پہلے، غوث اعظم بعد میں۔ اب امام حسین کے نام پر تڑپ کر بولا سبحان اللہ۔ اور چلیے کربلا کی سرزمین پر امام حسین پاک کربلا کی سرزمین پر پہنچے، حسین اعظم پہلے، شہید اعظم بعد میں۔ اب اگر آپ آواز بلند کریں تو میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں۔ چلیے نبی کے زمانے میں چلتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر پہلے، صداقت کے تاجدار بعد میں، حضرت عمر فاروق اعظم پہلے، عدالت کے شہسوار بعد میں، حضرت عثمان غنی پہلے، سخاوت کے تاجدار بعد میں، حضرت مولا علی پہلے، شجاعت کے تاجدار بعد میں۔ اور تھوڑا آواز بلند کرے تو چلیے آدم کی بارگاہ میں چلے، حضرت آدم پہلے صفی اللہ بعد میں، حضرت نوح پہلے نجی اللہ بعد میں، حضرت ابراہیم پہلے خلیل اللہ بعد میں، حضرت اسماعیل پہلے ذبیح اللہ بعد میں، حضرت موسیٰ پہلے کلیم اللہ بعد میں، حضرت عیسیٰ پہلے روح اللہ بعد میں۔ مگر قربان جائیے آمینہ کے لال پر، جو محمد الرسول اللہ پہلے، آمینہ کا بیٹا بعد میں ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام پکار اٹھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اسی نبی کے چھتر چھائے میں پلنے والے کا نام علی ہے۔ چلیے یہیں سے آگے بڑھتے، تمہیدی کلمات کے طور پر میں نے یہ چند جملے بولے۔ اسی نبی کے چھتر چھائے میں پل کر اپنی عمر کی سالوں اور اپنی عمر کی منزلوں کو طے کرنے والے کا نام حضرت مولا علی ہے۔ بھی منقبتیں آپ نے سنی، کون ہے مولا علی؟ بارگاہ مصطفیٰ کے وہ عظیم سپہ سالار، اسلام کے چوتھے خلیفہ۔ بہت زیادہ نہ بول کر کے تھوڑا سا بتاؤں گا، اشارتاً سمجھتے چلیے اور اپنی بات کو آگے لے کر کے چلو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، بارگاہ مصطفیٰ کی چنندہ وہ شخصیت کہ جب نبی کو اپنے بستر پر کسی کو لٹانے کی ضرورت پڑے تو پیارے مصطفیٰ حضرت علی کو یاد فرمائے۔ جس کو نبی اپنا بستر دے دے، سمجھیے اس علی کی عظمتیں کیا ہوں گی۔ اور سنیے، جب کسی جنگ میں کامیابی کی ضرورت پڑے، جب کسی موقع پر، جس جنگ خیبر میں خیبر کو فتح کرنے سے لوگ قاصر آ جائیں اور وہاں جب کامیابی کا جھنڈا جمانا ہو، کامیابی کا جھنڈا گاڑنا ہو، تو نبی علی کو یاد فرمائے۔ مطلب یہ کہ نبی فرمانا چاہتے تھے لوگوں، علی وہ شخصیت ہے، علی وہ عظمتیں ہیں کہ جب مجھے بستر پر لٹانے کی ضرورت پڑے تو علی کو یاد کرتا ہوں، اور جب جنگ میں کامیابی حاصل کرانے کی ضرورت پڑتی ہے تو جھنڈا علی کے ہاتھ میں عطا کر دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، حسینی کمیٹی، سرزمین بھوڑا بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت۔
यही मौला अली फरमाते हैं, लोगों सुनिए, मेरी अजमतें समझना चाहते हो तो सुनिए। जब मैं 8 साल का था मेरे मुस्तफ़ा, मैं नबी के साथ रहा करता था, बचपने से मैं साथ में था। मदीने वाले मेरे घर पर आए, अपने घुटनों के बल बैठे और कहा अली जरा मेरे करीब आइए, मेरी गोद में आ जाइए। अली फरमाते सुनिए, मेरी अजमतों को समझना चाहते हो। मदीने वाले ने पुकार करके कहा अली मेरे करीब आ जाइए। हजरत अली को मदीने वाले ने पुकारा। अब जब अली को नबी ने पुकारा तो हजरत अली फरमाते हैं मैं नबी की बारगाह में दौड़ करके गया और नबी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मतलब ये कि सबसे पहले नबी के सीने से लगने वाले का अगर किया कोई नाम है तो उसका नाम अली है, उसको अली कहा जाता है। अली फरमाते ये तो मेरा बचपना था कि सबसे पहले नबी ने अपने सीने से मेरा सीना लगाया था। अब सोचिए कि जिस अली का सीना नबी के सीने से मस हो जाए, उस अली के सीने का क्या कमाल होगा, उस अली के सीने की अजमतें क्या होंगी। अली फरमाते बात यह नहीं है, जब नबी का विसाल होता है, नबी को कब्र के अंदर उतारा जाता है, तो अली फरमाते हैं नबी को जब मैंने उतारा तो बचपने में नबी ने अपना सीना मेरे सीने से लगाया और जब कब्र में उतारा गया तब भी नबी का सीना अली के सीने से लग रहा था। ये पीछे वाले क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पीछे वाले क्या खाकर बैठे हैं इधर वाले, थोड़ा आप बोलेंगे सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलेंगे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सबों को सलामत रखे। आइए, ये है हजरत मौला अली की ज़ौजा का नाम हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जानते हैं हसनैन करीमैन की वालिदा को जानते हो? नहीं। इमाम हुसैन की वालिदा का नाम क्या है? जोर से बोल के बताइए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हसनैन करीमैन की वालिदा। इनकी बारगाह में पहुंचूंगा, मगर मैं एक बात हजरत अली के ताल्लुक से और छोटी सी बयान कर दूं, क्योंकि मेरे जहन में बार बार ये बात बार बार उठ रही है, ताकि मैं इसको छोड़ूं तो कहीं ऐसा ना हो कि एहसास हो कि अरे यार ये बयान करना था मुझे। वो सुन लीजिए थोड़ी सी बात। हजरत अली ने जामे शहादत नोश फरमाया, जामे शहादत नोश फरमाया, पता है सबको। जिस वक्त आपके कान के करीब में खंजर मारा गया था, हजरत अली शदीद जख्मी हुए थे, शदीद जख्मी। मैं जो बताना चाहता हूं कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करम का दरिया कितना वसी है, आपका सीना मुबारक कितना वसी है, और आप नबी का घराना, अहले बैत का घराना कितना अजीम है, वो बताना चाहता हूँ। हजरत अली को जख्मी कर दिया गया। जख्मी जब हुए तो शदीद, आपके जब खंजर मारा गया तो उसे इतनी शदीद चोट और शदीद जख्म लगा कि उसकी भरपाई होना मुश्किल थी। हकीमों को बुलाया गया, उस वक्त जो माहिर तिब थे सबको इकट्ठा किया गया। सबने अपनी अपनी तजवीज पेश की कि ये इस्तेमाल कर लीजिए, ये इस्तेमाल कर लीजिए। एक हकीम साहब आए का, हुजूर आप दूध पी लीजिए और दूध में डालकर उन्होंने कोई दवाई दी, आप इसको पी लीजिए, आपके जिस्म में ताकत आ जाएगी, आपके जिस्म को मजबूती मिल जाएगी, आपको थोड़ी पावर मिल जाएगी। हजरत मौला अली की बारगाह में दूध का प्याला पेश किया गया, दूध का प्याला पेश किया गया। ऐ अली, इस दूध के प्याले को आप नोश फरमा लीजिए। मेरे अली की बारगाह में जब दूध का प्याला पहुंचा, हजरत अली जिस बिस्तर पर लेटे थे वो बिस्तर जो था बिल्कुल दरवाजे के ठीक सामने था, दरवाजे के ठीक सामने था। जिस मरवान ने आप पर हमला किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस वक्त आपकी बारगाह में दूध का प्याला लाया गया, वो उस जिसने हमला किया दरवाजे पर बैठा है। मेरे अली की बारगाह में जब दूध का प्याला पहुंचा, अली ने निगाह उठाकर देखा, पूछा ये दरवाजे पर कौन बैठा है जिसके हाथ बंधे हुए हैं? लोगों ने कहा ऐ हजरत अली, ये वही शख्स है जिसने आप पर हमला किया था, ये वही बंदा है जिसने आप पर खंजर चलाया था। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरे अली ने कहा ये भी रात से भूखा है और मेरे पेट में
भी कुछ नहीं गया है। अल्लाह 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 तवज्जो रखना और एक पैगाम लेकर के जाना। हजरत मौला अली की बारगाह से पैगाम क्या मिलता है? वो अली जिनकी बारगाह से पैगाम ये मिलता है, लोगों याद रखो, ईसार कुर्बानी ये तमाम उस घराने से मिलती है कि जिस घराने के नाम पर न जाने लोग क्या क्या बकवास करते हैं। ये खानदान मुस्तफा है, ये घराना अली है। जिस अली के घराने का पैगाम ये है कि लोगों अगर तुम्हारी जान पर बन आए तब भी हमेशा ये याद रखना कि अगर तुम्हारी जान से किसी का भला हो सकता हो तो उसका भला कर देना। इसलिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह को अगर सबसे ज्यादा नेक कामों में कोई काम पसंद है तो यह है कि दुनिया के अंदर किसी मजलूम का या किसी परेशान हाल इंसान की परेशानी को दूर कर देना, उसका काम बना देना। अली ने फरमाया, सुनो लोगों, ये भी रात से भूखा है और मैं भी रात से भूखा हूँ, इसलिए याद रखो ये दूध का प्याला मुझे ना पिलाओ बल्कि उस मरवान को पिला दो जिसने मुझ पर रात हमला किया है। अब वो दूध का प्याला मरवान की बारगाह में लेकर जाया गया। ऐ बंदे, तू दूध का प्याला पी लिए, तू दूध का प्याला पी ले। उसने कहा, ये बता ये भेजा किसने है? लोगों ने कहा, हजरत अली ने तुझको दूध पीने के लिए भेजा है। इस जालिम ने कहा, अली ने भेजा है, अली से तो मैं दुश्मनी करता हूँ। अगर अली से दुश्मनी ना करता तो हमला क्यों करता? अली से मैं दुश्मनी करता हूँ, इसलिए अली के हाथों का दूध नहीं पीऊंगा। अब दूध वापस हजरत अली की बारगाह में आता है। सरकार अली मकाम, आपके हाथों का दूध उसने नहीं पिया है। इमाम अली ने इतना सुना तो मालूम इमाम अली क्या फरमाते हैं? सरकार अली फरमाते हैं, लोगों याद रखो, अगर ये आज दूध पी लेता तो कल मैदान महशर में इसको अपने हाथों से जामे कौसर पिलाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। कितना वसी है सीना, सखावत का दरिया कितना वसी है कि जिसने हमला किया उसके बारे में बोला, अगर ये आज दूध पी लेता तो कल इसको जामे कौसर अपने हाथों से पिलाता। मगर चूंकि उसके मुकद्दर में नहीं था, उसकी किस्मत में नहीं था, उसके नसीबे में नहीं था। बाब खैबर के ताल्लुक से अभी आपने एक नाते मुस्तफ़ा सुनी थी, मैं वहाँ पर एक हल्की सी झलकी डालता चला जा रहा हूँ। एक नौजवान हजरत अली की बारगाह में हाजिर होता है। बाब खैबर के बाद की बात है, जंग खैबर के बाद की बात है। हजरत अली ने लोगों की दावत की थी। एक नौजवान हजरत अली की बारगाह में हाजिर होता है। हजरत अली उस वक्त में एक अखरोट को अपने दांतों से फोड़ रहे थे, मगर अखरोट दांतों से फूटता नहीं था, कभी इधर होता कभी इधर होता। नौजवान हजरत अली को देख रहा है, बड़ी टिकटिकी निगाहें बांध कर देख रहा है। हजरत मौला अली ने जब उसको देखा अपने करीब बुलाया, अरे नौजवान इधर आओ, क्या देख रहे हो? नौजवान हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने पूछा, क्या देख रहे थे? उस नौजवान ने कहा, सरकार मैं कुछ नहीं, आपको देख रहा था। क्या अच्छा ये बताओ क्या सोच रहे थे? नौजवान ने कहा, नहीं कुछ नहीं सोच रहा था। मौला अली ने पूछा, बताओ ना क्या सोच रहे थे? नौजवान बोला, सरकार कुछ नहीं सोच रहे थे। तो मालूम है हजरत अली ने क्या बोला? हजरत अली ने बोला, मैं बताऊं या तुम बताओगे क्या सोच रहे थे? नौजवान ने कहा, सरकार आप ही बता दीजिए। तो अब मौला अली की जबान सुन लीजिए। हजरत अली फरमाते, सुन नौजवान, तू अब जो अपने मन अपने जहन में सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि अली से अखरोट नहीं फूट रहा है तो बाबे खैबर को कैसे खाद से उखाड़ दिया। जुमला दे रहा हूं, हजरत अली फरमा रहे, तू ये सोच रहा है कि अली से एक अखरोट नहीं फूट रहा है तो बाबे खैबर को एक हाथ से कैसे उखाड़ दिया? एक हाथ से कैसे उखाड़ा? एक हाथ से कैसे उखाड़ा? एक हाथ से हजरत अली ने कैसे फेंक दिया और ढाल की जगह पर इस्तेमाल किया? कैसे मुमकिन? अली ने कहा, नौजवान सुन, तवज्जो, अरे नौजवान कान खोल कर सुन ले, वो बाबे खैबर था। बाबे खैबर सुनिए, आज भी उस बाबे खैबर की तरह अगर दो चार बाबे खैबर और हो, अली उनको भी एक हाथ से उखाड़ कर फेंक सकता है। तवज्जो तवज्जो, अब सुनिए, हजरत अली फरमाती है, जो अखरोट में फोड़ रहा था, ये जो अखरोट है, अली फरमाते अखरोट में अपने जिस्मानी ताकत से फोड़ रहा हूं, अपनी ताकत से फोड़ रहा हूं। अब हजरत अली फरमाते अब तेरा सवाल ये होगा, तो फिर बाबे खैबर कैसे उखाड़ा?
علی نے کہا نادان یہ اخروٹ پھوڑنا یہ میری اپنی طاقت، اور جب باب خیبر کو اکھاڑا تھا تو اپنے ایمان کی طاقت سے اکھاڑا تھا، اور ایمان کی طاقت کبھی کمزور نہیں پڑتی۔ اور علی کا ایمان جن کے تعلق سے کہا گیا، میرے نبی نے فرمایا جو علی سے محبت، جس نے علی سے محبت کی اس نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا، کیا بات، اور جو علی سے عداوت کرتا ہے، علی سے نفرت کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ جی حضرت علی سے عداوت رکھنے والے کو نبی نے منافق کہا، اور علی سے محبت کرنے والے کو کامل الایمان کہا۔ پتہ یہ چلا کہ علی کی محبت اگر سینے میں ہو تو ایک مسلمان ہوتا ہے، اور علی کی محبت سینے میں نہ ہو تو نام تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر کام مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔